Hello everyone, welcome back to Vigyan Academy. Today we are back with another important video on current affairs. ठीक है? That are important for your examination point of view. So let's start one by one. We'll go through certain topics which are current events that are important for your examination point of view. एक एक करके देखते हैं. ठीक है? So what are we going to discuss today? We'll discuss about the imbalance of soil organic carbon in India. We'll discuss about the observations made by the Aditya L1. We'll talk about India-Angola relations, and we'll talk about the nutritional transformation that is taking place in India. ठीक है? Let's start. Our first topic for the day: soil organic carbon. Let's see why it was in the news currently. ठीक है? The ICAR. What is the ICAR? The ICAR is the Indian Council for Agricultural Research. So the ICAR recently conducted a very large scale study. They conducted this study across 620 districts of India, and they took approximately 2.54 lakh samples for this study. And what did they find out? They find out that due to climate change, because of two reasons: for climate change and for fertilizer imbalance means that nowadays farmers are very much dependent on fertilizers. वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं और उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस तरीके से यूज करते हैं. एंड दिस फर्टिलाइजर्स दे कंटेन अ लॉट ऑफ हार्मफुल इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ठीक है? a lot of harmful inorganic chemicals are there because of climate change. और ज्यादा फर्टिलाइज यूज होने की वजह से हमारे इंडिया के सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट हैज कम डाउन. ठीक है? और व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसओसी? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में एसओसी बोल सकते हैं. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट आर causing a harm in SOC? Temperature. We all know because of global warming, temperature is fluctuating. The fluctuating pattern of rainfall and the cropping patterns, because cropping patterns are also fluctuating in the country. It all owing to the climate change crisis. Also, because of highly inorganic compound containing this fertilizers that contain things like urea and phosphate. Urea and phosphate, these are inorganic contents. ठीक है? इन सब कंटेंट्स को जब हाई अमाउंट में यूज किया जाता है इम्बैलेंस तरीके से, तो ये सॉइल के हेल्थ को खराब कर देते हैं. ठीक है? अब what are the key findings? As we discussed, that why is the SOC declining? Why is the soil organic carbon declining? Organic carbon soil में क्यों कम हो रहा है? सबसे पहला, अब बात यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Plants, they need organic carbon and they get a lot of organic carbon from the soil itself. अब पेड़ पौधों को, क्रॉप्स को बड़ा होने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए जो उनको जमीन से मिल जाता है. अब बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कार्बन, जमीन का फर्टिलिटी कम हो रहा है. इट विल बी डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन दिस टाइप ऑफ सॉइल. अदर देन दैट, इट्स आल्सो अफेक्टिंग माइक्रोबियल लाइफ. वी नो लाइफ इज कार्बन बेस्ड. तो सॉइल में जो माइक्रोबियल लाइफ होता है, द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन दे सर्वाइव on a huge chunk of organic carbon content that comes from the soil. अब जैसे organic carbon content कम हो रहा है, because of this the microbial life will also be affected. अब SOC कम होने के कारण soil का fertility और soil में जो microbial population है that is decreasing. And let me tell you, microbial population is actually very important for the soil, because in leguminous crops, जो legumes होते हैं उनके roots में you have the nitrogen fixing bacteria. These are microbes that fix atmospheric nitrogen for the plants. But due to a decline in the SOC, these microbes are going to take a hit. And as a result, nitrogen fixation will become very difficult for plants. This will be an issue in the long run. Fertilizer imbalance, as I said, nitrogen और phosphate का overuse. Urea contains nitrogen and phosphate इन compounds का overuse होता है. Inorganic compounds ज़्यादा use हो जाते हैं.
and because of this imbalance the soil becomes very disbalanced. अगर इनऑर्गेनिक चीजें ज्यादा हो जाएगी तो जो ऑर्गेनिक इनपुट है, ऑर्गेनिक इनपुट कम हो जाएगा, उससे ऑर्गेनिक कार्बन कम बनेगा। अब सबसे खराब इफेक्ट इसका कहाँ हुआ है? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। यूपी is a very large state. The western side of UP, which falls towards Delhi, okay? The eastern side of UP is towards Bihar. The western side of UP, Haryana and Punjab, they have been worst affected. क्योंकि these are the regions जहाँ पे maximum farming होती है इंडिया में। इसी वजह से इन जगहों पे फार्मर्स हेविली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यही रीजन्स क्यों? क्वेश्चन विल कम दैट व्हाई दीज रीजन्स ओनली? द रीजन इज दैट इन दीज थ्री रीजन्स, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, द फार्मर्स आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि इन एरियाज में फार्मिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है एंड ये फार्मर्स इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स बिकॉज उनके पास और कोई ऑर्गेनिक ऑप्शन भी नहीं है, और होने से भी इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर देम। बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेटली ये इतना ज्यादा यूज हो जाता है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स कि बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इम्बैलेंस वो ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने लगता है सॉइल, which is reducing, declining the SOC content. एलिवेशन और टेम्परेचर का रोल देखते हैं। जो जो whichever place is at higher altitudes, हायर ऑल्टीट्यूड वाले जगहों पे ऐसा पाया गया है कि एसओसी कंटेंट ज्यादा है सॉइल में, ठीक है? कभी भी अगर टेम्परेचर हाई होता है इन प्लेसेस विथ हाई टेम्परेचर, द लॉस ऑफ कार्बन इज ऑल्सो वेरी हाई। टेम्परेचर जितना हाई होगा सॉइल से कार्बन उतना ही फास्टर लॉस होगा, उतनी ही जल्दी कार्बन जाएगा सॉइल से। तो प्लेसेस लाइक राजस्थान, इवन इन तेलंगाना, टेम्परेचर आर सडनली इंक्रीजिंग। राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ दैट सॉइल से कार्बन बहुत जल्दी लॉस होता है। और क्लाइमेट फैक्टर, एज आई सेड, वार्मिंग से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। जो मरे हुए माइक्रोब्स है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, और इनका डिकम्पोजिशन ज्यादा होने से जो कार्बन है वो सॉइल से बहुत जल्दी लॉस होता है। अब आईसीएआर ने एक मैपिंग किया है, द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, दे हैव प्रोड्यूस्ड एन एग्रो इकोलॉजिकल सॉइल कार्बन मैप। ये मैप्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं फॉर पॉलिसी प्लानिंग। मैप्स का रोल क्या होगा? इन मैप से, इस मैपिंग टेक्निक से पॉलिसी मेकर्स को एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे कौन से रीजियंस है जहां पे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत कम, या ऐसे कौन से रीजन्स है जहाँ पे एसओसी ज्यादा है, कैसे कंडीशंस में एसओसी कम होता है, कैसे कंडीशंस में एसओसी ज्यादा होता है। एंड अकॉर्डिंगली इस इशू को टैकल करने के लिए जो हमारी सरकार है, हमारे पॉलिसी मेकर्स है, दे विल बी एबल टू कम अप विथ प्रॉपर पॉलिसीज फॉर डिफरेंट रीजियंस टू हैंडल द मैटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, द आदित्य L1, ठीक है? Now the Aditya L1, why was it in the news? Because it recorded the first spectroscopic observations of the coronal mass ejection in visible range. तो जो एक कोरोनल मास इजेक्शन मतलब एक सोलर आउटबर्स्ट, ठीक है? आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि आदित्य L1 को अपने विजिबल रेंज में, तो ये बहुत दूर भी नहीं और एकदम बहुत करीब भी नहीं, एक प्रॉपर विजिबल रेंज जहां उसको ढंग से दिख सकता है, एक प्रॉपर विजिबल रेंज में आदित्य L1 को एक मास इजेक्शन का इमेज मिला है फ्रॉम द सन, ठीक है? और ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है इंडिया के स्पेस उसके लिए, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मेजर सोलर मिशन है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। विल सी द डिटेल्स ऑफ इट नाउ, ठीक है? व्हाट इज अ कोरोनल मास इजेक्शन? सन के अंदर से अगर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बड़ा इरप्शन हो, बिकॉज सन के अंदर कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ विच द सन इज दिस हॉट, इट इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, ठीक है? अब सन से कभी कभी प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा एक इरप्शन निकलता है। दिस काइंड ऑफ इरप्शन, लाइक ऐसा फट के मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, फैल जाता है मैग्नेटिक फील्ड उसका अचानक से, और plasma bursts out of the sun. Now this kind of a phenomenon is known as mass coronal mass ejection or CME, ठीक है? अब ये होने से कभी कभी क्या होता है
ये चीजें हमने ये होने से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स क्या है, ये जब भी ये सोलर इरप्शंस होते हैं ना, ये फटाक से मैग्नेटिक फील्ड एकदम फैल जाता है निकल के स्पेस में। इसकी वजह से क्या होता है, सैटेलाइट्स में डिसरप्शन होता है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही सैटेलाइट टकराएगा, सैटेलाइट आल्सो हैज मेनी मैग्नेट्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी वजह से सैटेलाइट ढंग से काम नहीं कर पाता। सोलर इरप्शंस होने से अगर वो बहुत ज्यादा जोर से हो, यहाँ अर्थ पे जो हमारे पावर ग्रिड्स है, जिससे हमारे घरों में बिजली आती है, पावर ग्रिड्स काम करना बंद कर देते हैं। रेडियो सिस्टम्स भी हार्म होता है, क्योंकि हमारे जो रेडियो ट्रांसमिटिंग वेव्स है, दीज वेव्स दे कोलाइड विद द magnetic field in the eruption of the sun, and because of this collision the whole wave transmission phenomena gets interrupted। तो इसे डिसरप्शन होते हैं। अब व्हाट इज लेग्रांजे पॉइंट वन? ये आदित्य L1 का नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा, नॉट वाई नॉट L2? बिकॉज इट वाज प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट कॉल्ड द लेग्रांजे पॉइंट L1। ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, ठीक है। और यहाँ पे उसको रखा क्यों गया, वाई एट L1 ओनली? क्योंकि देखो, अगर आप सन के ज्यादा करीब जाओगे तो सन आपको खींच लेगा, और नहीं तो आप जल जाओगे, और करीब जाओगे तो आप जल जाओगे। तो यू नीड टू बी एट सच अ पोजिशन फ्रॉम वेयर यू कैन व्यू द सन विदाउट एनी इंटरप्शन। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सन को देख रहे हो, बीच में से सामने से एक दूसरा प्लेनेट गुजरने लगा, योर व्यू विल बी इंटरप्टेड। तो ये लेग्रांजे पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप सन को अनइंटरप्टेड वे में देख सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन इजीली व्यू द सन, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट लेग्रांजे पॉइंट L1 इज अ पॉइंट ऑन द स्पेस व्हिच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां पे ग्रेविटी का बैलेंस होता है, अपना इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, यू विल स्टे देयर आराम से, एंड यू कैन लुक एट द सन इन एन अनइंटरप्टेड वे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। अब आदित्य L1 मिशन के बारे में देखते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर आदित्य L1? इट वाज द PSLV C57, ठीक है। और इसको पोजीशन कहाँ किया गया है? एज आई सेड, इसको पोजीशन किया गया है L1 लेग्रांजे पॉइंट पे। नाउ व्हाई एट L1 लेग्रांजे पॉइंट? बिकॉज वहां से आप सन को बिना किसी इंटरप्शन के देख सकते, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधा सन दिखेगा। तो फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कि आप कंटिन्यूअस देख पाओगे सन को वहां से, कोई बीच में नहीं आएगा, ना कुछ इधर उधर होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू स्टडी द कोरोना, द सोलर विंड्स, द CMEs जो अभी हुआ, द कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। स्पेस का वेदर कैसा है, और व्हाट इज द पेलोड? पेलोड मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर डिवाइस का, ठीक है। इट वाज बिल्ड बाय द IIA बैंगलोर विद इन कोलैबोरेशन विद इसरो। और ये करता क्या है? ये सन के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करता है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द कोरोना, स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस द स्टडी ऑफ लाइट। सन का जो रे निकलता है उसके आउटर पार्ट से, उस लाइट को, स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस टू स्टडी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बाय स्टडीइंग इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है, ये सन के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें देता है, और सन के लाइट को स्टडी करता है, टू अंडरस्टैंड कि सन के लाइट का नेचर क्या है। इज इट हाई इंटेंसिटी लाइट, लो इंटेंसिटी लाइट, लाइट का वेवलेंथ कैसा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी कैसा है। सिग्निफिकेंस क्या है? अभी जो रिसेंट हमारा वो हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये किसी मास इरप्शन का हमारा क्लोजेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन वाई? क्योंकि सन से जो एनर्जी निकला है, जो लाइट निकला है विद द इरप्शन, उसका प्रॉपर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइट स्टडी किया है हम लोग। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज बीन एबल टू डू इट, क्योंकि प्रॉपर एक विजिबल रेंज में क्लियरली इसके पहले हमें ऐसा इमेज मिला नहीं। ये 2023 में लॉन्च के बाद फर्स्ट टाइम हमें ऐसा इमेज मिला। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट सोलर स्टॉर्म्स, कि सोलर स्टॉर्म्स कब आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सोलर स्टॉर्म्स और इरप्शंस होने से सैटेलाइट्स को हार्म होता है मैग्नेटिक फील्ड से टकराने के कारण। अगर हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इस एरिया में सोलर स्टॉर्म का इफेक्ट होगा, देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सैटेलाइट्स। हम सैटेलाइट को कहीं और पोजीशन कर सकते हैं, सैटेलाइट को किसी सोलर स्टॉर्म के डिसरप्शन से बचा सकते हैं।
Coming to the next news, the India-Angola relations. Now, what are India-Angola relations? Let's look at it why it was in the news. Our president, Srimati Draupadi Murmu, she recently made her maiden visit to Angola. Maiden matlab first. She made her first visit to Angola. ठीक है? Why? What was the emphasis on? It was on expanding energy cooperation. ठीक है? It emphasized on the expansion of energy cooperation की एनर्जी के सेक्टर में कैसे दो कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती है. हाउ बोथ द कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर to use energy in a more judicious manner, in a more sustainable manner. और दोनों देशों के हेड्स ने मिलकर बहुत सारे एमओयू साइन किए. ठीक है, ताकि दोनों देश बहुत सारी चीजों पे एक साथ एक दूसरे की मदद कर पाए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए. दे साइंड एमओयूज इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस. इंडिया उनको डिफेंस के फील्ड में हेल्प करेगा. आयुर्वेदा, एक्वाकल्चर, फिशरीज एंड मैरीटाइम, इन चीजों पे इंडिया ने अंगोला के साथ एमओयू साइन किया. अब अंगोला कहाँ है? रिमेंबर दिस, अंगोला इज अ कंट्री सिचुएटेड इन द अफ्रीकन कंटिनेंट. दिस इज अंगोला, दिस आर इंडिया. अब लेट्स लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ द अंगोला विजिट. ठीक है, एनर्जी का पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट था. दे एक्सपांडेड द कोऑपरेशन इन ऑयल एंड गैस, जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है. और एज द फ्यूचर इज अराइविंग, वी नो दैट वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स नाउ. ताकि अगर हमको जीना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, if we have to live the life that we are living, we have to shift to a renewable source of energy. Other than fossil fuels, they also planned partnerships on renewable energy, जो एक alternative form of energy, and fertilizers. Why fertilizers? So that they can get help from us in the field of agriculture as well. Economic expansion कैसा हुआ है? Economic expansion जो एनओयूज में क्या है? फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफेंस सेक्टर. इन सेक्टर्स में इंडिया इज अहेड of Angola. So now India, by signing this MOU, India अपने अफ्रीकन कंटिनेंट में अपना एक प्रेजेंस बना रहा है. And also being a very good country, being a cooperative country to the rest of the countries in the world, India will be providing Angola with, you know, economic expansion in these sectors. कि Angola जैसे कंट्री में इन सेक्टर्स में एक्सपेंशन. डिफेंस और आयुर्वेदा में एमओयू साइन हुआ है. हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका एक्सेस देना उन लोगों को, उनके डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, डीआरडीओ वगैरह, इसरो में, these technologies will, there will be an exchange of technology, there will be technology transfer. ठीक है. अब अंगोला जो है ये जीबी और आईबीसीए का पार्ट है. और अंगोला का इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है? इंडिया का जो यूएनएससी में बिड है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट चाहिए. व्हाट आर द 5 परमानेंट कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स, the United Kingdom, France, Russia, and China. These 5 countries are the P5 or the permanent 5 members of the UNSC. India has been bidding for a permanent seat in the UNSC for a long time now. There are many countries who support India. There are many countries who do not support India in this. But Angola is one of those countries जो इंडिया के इस डिसीजन को बैक करता है. अंगोला हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस लेवल पे भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, बैकिंग दे रहा है. क्यों? ताकि हम लोगों को यूएनएससी में एक परमानेंट सीट मिले. अब इंडिया अंगोला के रिलेशंस का एक बैकग्राउंड चेक करते हैं. इंडिया और अंगोला में रिलेशन अभी से नहीं है, बहुत पहले से. दीज टू कंट्रीज दे हैव डिप्लोमेटिक टाइज सिंस 1985. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम से इनके रिलेशंस. एंड अंगोला अफ्रीकन कंटिनेंट में, अंगोला इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अफ्रीका में, नॉट इन द वर्ल्ड, इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज अंगोला. सबसे ज्यादा ट्रेड टॉप 3 अफ्रीका में, 3rd पोजीशन पे अंगोला है. हम दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया और अंगोला के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, उसका वैल्यू इज मोर देन $5 बिलियन. ठीक है.
$5 बिलियन से भी ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड होता है दोनों के बीच में। मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेड इज इन क्रूड इंपोर्ट्स। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अंगोला से, ठीक है। तो क्रूड इंपोर्ट्स फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ दिस $5 बिलियन। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि देखो अंगोला जो है एज अ कंट्री, ये बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में रिच है, जैसे ऑयल एंड गैस और डायमंड्स। इन वैल्यूएबल चीजों में अंगोला रिच है, तो अंगोला के साथ अच्छे रिलेशंस रखना मींस दैट इंडिया हैज अ बैकिंग इन दीज रिसोर्सेज। प्लस इंडिया का जो एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन है, बिकॉज इंडिया डजंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल एंड डीजल एनीमोर, वी आर डाइवर्सिफाइंग, we are going for electric cars, we are going, the Indian vehicles are also going for ethanol blending, they are going for other renewable sources of energy, hydroelectric power, for wind power, geothermal energy. We are even looking at an alternative of nuclear energy for electricity. इंडिया का जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको अंगोला बहुत सही से सपोर्ट करता है। सिग्निफिकेंस एज आई सेड, साउथ साउथ कोऑपरेशन होगा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, अफ्रीका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, साउथ में है ना, इक्वेटर के नीचे है दोनों। तो बिकॉज ऑफ दिस एक साउथ साउथ कोऑपरेशन रहेगा, एंड एज आई सेड बिफोर, अफ्रीका में इंडिया का प्रेजेंस ये बढ़ाएगा, क्योंकि आप एशिया में ऑलरेडी प्रेजेंस बढ़ा रहे हो बाय डूइंग ट्रेड विद साउथ एशियन नेशंस, विद सार्क, एशियान कंट्रीज, ठीक है, द बिम्स्टेक नेशंस। अदर देन दैट, अफ्रीका में किसी कंट्री से ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में यानी अफ्रीका में भी हमारा पोजीशन स्ट्रांग होगा। कुछ चैलेंजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल अंगोला जो है, अंगोला एक वॉलेटाइल कंट्री। वाई इज इट वॉलेटाइल? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हद तक ऑयल पे डिपेंडेंट है। उनका इकोनॉमी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल। देयर इकोनॉमी इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थिंग। स्किल लेबर, स्किल्ड वर्किंग पर्सनल या फिर दूसरे तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स उतने है नहीं, नॉट जस्ट अंगोला एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस, बट दिस कंट्री इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। अगर कभी इनका ऑयल का रिजर्व या ऑयल का बिजनेस खराब हो गया, तो अंगोला's economy will take a very very bad hit on itself. प्लस कंपटीशन फ्रॉम चाइना। इंडिया को जैसे दोस्ती करना है इनके साथ, चाइना को भी इनके साथ दोस्ती करना है, बिकॉज इवन चाइना वांट्स स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड, दैट वी नो इट। बट इंडिया इज कंपीटिंग विद चाइना एंड वीक कनेक्टिविटी, बिकॉज अगर आपने वो मैप देखा होगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग रूट फ्रॉम इंडिया टू अंगोला, तो कनेक्टिविटी इज वेरी वीक, बहुत घुमा के जाना पड़ेगा। गेटिंग अ डायरेक्ट रूट टू अंगोला इज रियली रियली वे फॉरवर्ड। CEPA styled economic partnership. What is CEPA style economic partnership? जैसे चाइना दूसरों के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स करता है, डूइंग एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप समथिंग लाइक दैट, ठीक है, चाइना के लाइंस पे, ताकि जो दूसरा कंट्री है काइंड ऑफ आप पे डिपेंडेंट भी रहे, ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड यू आर आल्सो रिसीविंग फेवर्स फ्रॉम दैट कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करो। अंगोला जैसा कंट्री जिसका इकोनॉमी इतना वोलेटाइल है, उसकी इकोनॉमी अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपके दोस्त का इकोनॉमी खराब ना हो जाए, इतना वॉलेटाइल ना रहे, अब मेक श्योर करिए कि इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी या फिर इन एग्रीकल्चर, people from your country are privately investing there. Private investments, if they flow into Angola, the Angola as a country, as an economy will grow. Then leverage industries like ITC, pharma, digital infra for development. इन इंडस्ट्रीज को अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देते हो अंगोला में फ्रॉम इंडिया, इट विल बूस्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अंगोला एज अ कंट्री। एंड द वॉलेटिलिटी का जो इशू है, दैट यस वी आर देयर पार्टनर्स, वी आर पार्टनरिंग विद देम, बट अगर उनका जो इकोनॉमी है, अगर अचानक से ऑयल टेक्स हिट, देयर इकोनॉमी विल टेक अ हिट, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। अगर हम उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देते हैं इन अदर सेक्टर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, then it will give a good backing to the economy of the country. It will also be beneficial for us क्योंकि at the end वो हम उनके साथ partner हैं। तो हमारा पार्टनर सेफ है तो हम सेफ। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में वी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ये था
कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट पीपल डिड नॉट हैव मनी टू अफोर्ड द फूड्स, एंड सेकेंडली एंड अबव एवरीबडी एल्स एक्चुअली, इंडिया में उतना प्रोडक्शन ही नहीं था कि हम सबको खाना खिला पाए. फूड वाज लेस, डिमांड वाज हायर, पीपल वर हाई. So we had a problem of food security. But now the problem is somewhat solved because production is increasing. We still have the problem, but we have systems like NFSA, the National Food Security Act. We have the PDS, Public Distribution System. We have the Deen Dayal Antyodaya Yojana. These are things that are helping the authorities to reach out to a very targeted level at the grassroots level, so कि सबको खाना मिल जाए, सबको खाना थोड़ी से पहुंच जाए. बट अभी इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है. फूड सिक्योरिटी तो थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया कि चलो सबको खाना मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा. बट अब प्रॉब्लम हो गया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, कि खाना तो सबको मिल रहा है, लेकिन क्या वो खाना मिल रहा है जो जरूरी है? ठीक है, सबको चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, बट क्या चावल खाने से काम हो जाएगा? नो, बिकॉज इफ यू लुक एट द न्यूट्रिशनल लेवल, eating just a little bit of rice and dal will not give you enough proteins. आपको मैक्सिमम तो मैक्सिमम कार्ब्स मिलेगा, और दाल से थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन मिल जाएगा. बाकी जो फाइबर्स, विटामिन, फैट्स, these nutritions will be reaching the people in a lesser amount. ठीक है, पहले इंडिया को फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है. अब खाना मिल रहा है, तो नाउ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि खाना तो मिल रहा है, बट सही खाना, जरूरी खाना मिल रहा है कि नहीं, दैट इज अ बिग बिग इशू. तो फोकस किस पे करना है? फंक्शनल फूड्स पे. ऐसा खाना जो एक न्यूट्रिशन सप्लाई करे. स्मार्ट प्रोटीन्स. स्मार्ट प्रोटीन्स क्या है? वी विल लुक एट इट, एंड आल्सो सस्टेनेबिलिटी. वी विल टॉक अबाउट थिंग्स लाइक बायोफोर्टिफिकेशन एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स. ठीक है. इशू क्या है? सबसे पहला फंक्शनल फूड्स. एज आई सेड, फंक्शनल फूड्स क्या है? ऐसा खाना विच विल गिव यू न्यूट्रिशन बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा 3 मिल्क. मिल्क आपको मेनली क्या देता है? मिल्क आपको देता है प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी, एंड along with that milk also gives you to some extent some fat also. मिल्क में थोड़ा बहुत फैट्स भी होता है. नाउ इफ यू यूज फंक्शनल फूड जैसे ओमेगा 3 मिल्क, मिल्क का बेसिक न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स. ठीक है. तो ओमेगा 3 एज अ फंक्शनल फूड विल गिव यू बियॉन्ड दैट. मतलब आपको प्रोटीन और फैट तो दे ही रहा है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड जाके ये आपको ओमेगा 3 बोल के एक और चीज दे रहा है बॉडी के अंदर. सो व्हाट इज अ फंक्शनल फूड? इट इज समथिंग जो आपको जो बेसिक खाना न्यूट्रिशन देना है वो भी देगा, और उसके बियॉन्ड जाके और बेटर न्यूट्रिशन देगा फॉर योर बेटर बॉडी. फोर्टिफाइड ग्रेन्स, मतलब ऐसे ग्रेन्स जिसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ा दिया गया है. व्हीट, राइस, दे गिव यू लिटिल बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर मैं उसमें कुछ ऐसा कर दूं उसको उगाने में कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाए, देन इट विल बी नोन एज अ फोर्टिफाइड ग्रेन. स्मार्ट प्रोटीन्स. स्मार्ट प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स है? वी कैन यूज बायोटेक ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन. ठीक है. प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे सोया हो गया, प्लांट बेस्ड है. माइक्रोबियल प्रोटीन्स. देयर आर many microbial sources of protein as well. There are, if you go through, if you study plant kingdom in biology, you'll see that there are many algae that can be used as protein supplements. Cultivated meat. Cultivated meat मतलब ऐसा मीट जिसको आप ऐसे कल्टीवेट करो कि उसमें प्रोटीन का कंटेंट यूजुअल मीट से हाई हो. अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में 1/3 ऑफ चिल्ड्रन हैव स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मतलब उनका ग्रोथ रुका हुआ है, मतलब ग्रोथ होना ना होना उनके बॉडी में बराबर है, उनका बॉडी का मास भी ढंग से नहीं बढ़ रहा है, ना मोटे हो रहे हैं ना लंबे हो रहे हैं. इट इज स्टंटेड ग्रोथ. ग्रोथ ढंग से नहीं हो रहा है बॉडी का, जस्ट फिजिकली नहीं, इवन मेंटली भी ग्रोथ नहीं हो रहा है ढंग से. हालत इतनी खराब है कि 3 में से 1 बच्चा इंडिया में खराब ग्रोथ का शिकार है. हिडन हंगर. वाई हिडन हंगर? हिडन हंगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका भूख तो मिट जा रहा है. पेट में आपको भूख लग रहा था, आपने चावल खा लिया, दाल खा लिया, आपका भूख मिट गया. बट व्हाट इज द हिडन हंगर? द हिडन हंगर इज द लैक ऑफ न्यूट्रिशन. क्या बस दाल चावल से आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो जाएगी? नहीं होगी. दैट इज व्हाई वी कॉल इट हिडन हंगर. डिस्पाइट फूड सिक्योरिटी,
कि सबके प्लेट में अभी चावल दाल पहुंच जा रहा है, बट उससे काम नहीं होने वाला। देयर इज अनदर हिडन हंगर बिहाइंड इट, द हंगर फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। कि खाना तो मिल रहा है, बट बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट खाना है वो नहीं मिल रहा है। डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रोटी चावल लेके बैठ जाते हैं, साथ में दाल और सब्जी खा लेते हैं और ऐसे ही चलता रहता है खाना। कोई डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है कि साथ में थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़ा फैट हो। देयर इज नो डाइवर्सिटी इन। एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं। जो डीबीटी है हमारा और बायरेक, ये दो बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री के। अंडर द बायो ई3 स्कीम दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। द सीसीएमबी, they have funded 8.45 crore rupees for the creation of cultivated meat. इंडस्ट्री वाइज अगर देखें तो आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, मैरिको डेवलपमेंट, ये एफएमसीजी कंपनीज है। एफएमसीजी मतलब जो फूड और कंज्यूमर गुड्स बनाती है। दीज कंपनीज दे आर डेवलपिंग स्मार्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स। ठीक है। इंडिया में 70 से ज्यादा स्टार्टअप्स है दैट आर वर्किंग ऑन स्मार्ट प्रोटीन्स, जैसे गुड डॉट, ब्लू ट्राइब। ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे, सिंगापुर ने ऑलरेडी लैब ग्रोन मीट, जो कल्टीवेटेड मीट है, कल्टीवेटेड मीट ऐसा मीट है जो जानवर से कट के नहीं निकलता, ऐसा मीट है जो आप लैब में बनाते हो। ठीक है। यूजिंग डिफरेंट बायोटेक रिलेटेड टेक्निक्स आप लैब में बनाते हो। तो इससे क्या होता है, जानवर के मीट में जितना आपको प्रोटीन मिलता है उससे ज्यादा प्रोटीन होता है इन कल्टीवेटेड मीट। इन द ईयर 2020 सिंगापुर गवर्नमेंट ने लैब ग्रोन मीट को अप्रूव कर दिया है। ऑल्सो चाइना और जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, द ईयू कंट्रीज, दे हैव आल्सो बीन पुशिंग फॉर सस्टेनेबल प्रोटीन स्ट्रेटजीज। ऐसे स्ट्रेटजीज बनाओ हमारे देश में कि प्रोटीन बिकम द सस्टेनेबल, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट प्रोटीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों में। इंडिया के बच्चों में दाल चावल पहुंचने के बाद भी प्रोटीन ढंग से नहीं पहुंचता, क्योंकि प्रोटीन खाली दाल खाने से नहीं होने वाला है। ठीक है। प्रोटीन नहीं पहुंचता, इसलिए बच्चों का ग्रोथ स्टंटेड रह जाता है, ये बड़े नहीं हो पाते ढंग से। These countries are pushing for protein strategies कि ऐसे strategies बनाओ कि even in the long term people in the countries do not face any protein crisis। और भी चीजें हैं, पीएम पोषण योजना वगैरह है, सक्षम आंगनवाड़ी योजना है, जिससे बच्चों को पहुंचाया जा रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब स्मार्ट प्रोटीन्स क्या है, यू आर अबाउट टू टॉक अबाउट दैट। स्मार्ट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो आपको नए नए सोर्सेस से मिलता है, अदर देन द नॉर्मल प्रोटीन। हम कहां से लेते हैं, दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग। इन पर्टिकुलर कन्वेंशनल सोर्सेस के बाहर जाके अगर हम प्रोटीन लेंगे, यू नो, फ्रॉम मोर इनोवेटिव, मतलब बेसिकली मोर इनोवेटिव वेज ऑफ गेटिंग प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटीन। प्लांट बेस्ड, पीज, मिलेट्स, बाजरा, रागी, या फिर फ्रॉम सोया, इन सब जगह से अगर हम प्रोटीन लेते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये स्मार्ट प्रोटीन है। फर्मेंटेशन डिराइव्ड फंजाई और ईस्ट को भी वी कैन यूज एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स। एज आई सेड, आप एल्गी को भी कर सकते हो। कल्टीवेटेड मीट, ऐसा मीट जो जानवर से कट के नहीं आया, बट ऐसा मीट जो लैब में बनाया गया यूजिंग डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप स्मार्ट प्रोटीन यूज करते हो ना, देन यू हैव लोअर एमिशंस। ये जो बाकी हम प्रोटीन सोर्सेज यूज करते हैं उसमें कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है। स्मार्ट प्रोटीन का सोर्सेज में कार्बन एमिशन कम होता है, जूनोटिक रिस्क कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जूनोटिक क्या होता है, जूनोटिक डिजीज आर दोज डिजीजेस जो जानवरों में होता है, बट जब हम उस जानवर को खा लेते हैं तो वो डिजीज जानवर से इंसान में आ जाता है। अगर हम जानवर की जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे, एज अ रिजल्ट हमारा जूनोटिक डिजीजेस को टच करने का या कांटेक्ट में आने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। प्लस प्रोटीन्स विल बी डाइवर्सिफाइड फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी और बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रोटीन के अगर पहले 5 सोर्स थे, अब 10 सोर्सेज हो, तो प्रोटीन सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। चैलेंजेस क्या है, रेगुलेटरी गैप्स है। एफएसएसएआई जो फूड को अप्रूव करता है हमारी कंट्री में, एफएसएसएआई के रेगुलेशंस वगैरह है, उससे कंप्लाई प्रॉपर्ली होगा तभी जाके बन पाएगा। उनके कंप्लायंस नॉर्म्स थोड़े और इजी होने पड़ेंगे इसको अगर जल्दी करना है तो। एक कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म रह जाता है कि यार मैं क्यों खाऊं लैब ग्रोन मीट। इवन आई पर्सनली, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I would also, if somebody asks me, I would prefer
having normal chicken or mutton rather than having something like a plant-based meat or something, whatever. बट एक कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म रह जाता है कि यार मैं ये खा रहा हूँ, मेरे को यही अच्छा लगता है, पता नहीं ये कैसा होगा, खा के कुछ हो गया तो मैं नहीं खाऊंगा। कॉर्पोरेट डोमिनेंस रिस्क, कि यार अगर हमने ये चालू कर दिया तो कॉर्पोरेट्स अपने हाथ में ले लेंगे, और कॉर्पोरेट्स अगर इस मार्केट को डोमिनेट करने लग गए देन दीज थिंग्स विल बिकम वेरी कॉस्टली। अब चिकन का दुकान, आप चिकन 200 किलो में 200 रुपीज पर किलो में मिल जाएगा, बट अगर कॉर्पोरेट सेम चिकन बेचने लग गए अपने किसी एसी ऑफिस में, शोरूम में, वो चिकन आपको 1000 रुपए किलो में मिलेगा। कॉर्पोरेट डोमिनेंस का एक रिस्क है। और वर्क फोर्स शॉर्टेज, क्योंकि दीज आर बायोटेक बेस्ड गुड्स, तो ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेटेड स्किल्ड लोग चाहिए। अगर, क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स का शॉर्टेज है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल लोग हमारे देश में कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ वर्क फोर्स शॉर्टेज। अगर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम इसका वर्क फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयबल स्किल लोग बढ़ाने पड़ेंगे। दिस इज अ चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस करंट अफेयर्स क्लास। आई होप इट वाज अ वेरी हेल्पफुल क्लास। आप लोग को एक आइडिया मिला है अबाउट सर्टेन रिसेंट इवेंट्स of importance for your exam. Not just for your exam, it is also important for you to know what is going around you, whether inside the country or outside the country. ठीक है, you need to be an aware citizen. So I hope this was a very helpful video. We'll meet again soon in the next video. Have a nice day. Good night. Happy weekend. Jai Hind.